Hi, and welcome back to R&Y Inside Learning Hub. This is Sumit Kumar Chaudhary, and you are watching Manual Testing Series. Today, we will discuss on integration testing. It is a part of level of testing. So, today agenda is we understand what is the integration testing, why do we need integration testing, and what are the benefit of integration testing, and what is the approach to test the integration testing, and what are the steps to integrate testing. So let's begin. So any software consists of different modules that perform different functions. A software module may be working fine independently, but to ensure that the software work well when all the modules are integrated, tester perform integration testing to verify that. Integration testing evaluates the functionality of various modules when integrated to form on single unit. This testing validates smooth transition between various integration components of the software. The purpose of the integration testing is to find defect and fault between multiple interface of the software. So I believe you have watched our earlier video of the unit testing. So we have already discussed about the earlier about the unit testing. So in the unit testing, suppose we test first module, okay, login, okay, profile, and sign up, or we can say registration. Okay, and message. Okay, so this is a module 1, module 2, module 3, or module 4. So we test independently all these module. Okay, so all are working fine, and we want to test that when all these module interact with each other. Okay, then how it's performed. Okay, so for do that we perform the integration testing for, and we can take the second example. For suppose for car assembly, we test the uh, tire tire quality, okay, and an engine, then body, then AC, and other part. So we test, and after that we assemble the all the part together and test the final product of the car. Okay, to test the integration of the all the in शॉर्ट हम ये टेस्ट करते हैं कि जब एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा ट्रांसफर होता है तो सही से डेटा ट्रांसफर हो रहा है. सपोज अगर आप फेसबुक पे अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो जो आपने लॉगिन किया है तो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने चेक की होगी कि आपका यूजर नेम पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने यूजर नेम पासवर्ड
डिफाइन किया था वही है कि नहीं है, फिर वो सिस्टम चेक करता है और आपकी प्रोफाइल खुलती है। तो लॉगिन मॉड्यूल के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन गई सिस्टम को, सिस्टम ने चेक वेरीफाई किया और उस आपकी प्रोफाइल खोल दी। ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड से चैट या फोटो शेयर या कुछ भी जो भी आप फेसबुक पे करते हो या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे या जो भी फीचर हम करते हैं, तो एक एक मॉड्यूल का हम डेटा ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है ये टेस्ट करते हैं। ओके, नाउ द सेकंड इज why do we need a integration testing? So the defect is integrated module are difficult to find and are complex to fix. Fixing bugs in integration module can eliminate the overall number of the bug and decrease the count of the count changes in the next level of the system. जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया कि सपोज मैं इसको क्लियर कर देता हूं, मुझे एक मॉड्यूल मिला था, पहले मुझे मॉड्यूल मिला साइन अप। ओके, रजिस्ट्रेशन। जब मैंने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चेक किया तो उस समय मैंने जितने भी बग थे, ठीक है, जितने भी बग थे मैंने डाल दिया। सपोज कि यूजर नेम का लेंथ सही नहीं है या ईमेल आईडी सही वैलिड नहीं है या ब्लैंक में मैं बिना एंटर किए कुछ भी डेटा मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसे बग मैंने जो बेसिक बग है सारे रिपोर्ट करके उसको रिजॉल्व करवा लिए। ठीक है, तो उस समय मेरा साइन अप पेज सही काम कर रहा था। ठीक है, फिर मुझे मिला लॉगिन पेज। ठीक है, अब लॉगिन पेज मुझे जब मिला, ठीक है, तो मुझे एक 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 डमी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला, सपोर्ट टेस्ट 1 एंड पासवर्ड 1 ये मिला। तो इसके साथ मैंने जैसे ही लॉगिन किया तो ये लॉगिन मेरा काम कर रहा है। अगर मैं लॉगिन टेस्ट की जगह कुछ और 2 या यहाँ 2 डालता हूँ या कुछ और डालता हूँ तो मेरा लॉगिन एरर दे देना चाहिए। ठीक है, मैंने ये लॉगिन की फंक्शनैलिटी उस समय बेस एक डमी डेटा के साथ चेक कर लिया क्योंकि इसके आगे का स्क्रीन बनी नहीं थी उस समय या बन रही थी, तो हमने ये एक एक करके चेक कर लिया। अब मुझे ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये दोनों मिल गए, इन दोनों को चेक करो। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि पहले मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। ठीक है, अब मैंने रजिस्ट्रेशन किया सुमित नाम से, मैंने यूजर नेम रखा सुमित 1 2 3 एंड पासवर्ड रखा सुमित @1 2 3। ओके, मैंने ये यूजर नेम और पासवर्ड रखा साइन अप करते समय। अब मैं लॉगिन करूंगा तो मैं ये चेक करूंगा कि मेरा ये इसी डेटा के साथ लॉगिन पेज मुझे सिस्टम के अंदर घुसने दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मुझे एक डमी स्क्रीन मिल गई जहां पे हेलो सुमित लिखा था, हेलो सुमित लिखा था। तो इसका मतलब सुमित ने लॉगिन किया तो यहाँ पे सुमित का नाम आ रहा है। अगर अमित ने लॉगिन किया होता अमित 1 और अमित @1 2 3 तो अमित का नाम आएगा। ठीक है, ओके, तो यानी कि मेरा अब जो लॉगिन पेज है वो डायनेमिक डेटा के साथ चेक कर हो रहा है, ना कि डमी डेटा है हार्ड कोडेड डेटा के साथ चेक। तो मेरा इंटीग्रेशन टेस्ट हो गया कि जो भी यूजर यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहा है वही लॉगिन कर पा रहा है। अदर देन अगर कोई और ट्राई कर रहा है इसमें लॉगिन करने का तो नहीं कर पा रहा। अब मैंने यहाँ पे जो बग आए थे, अगर सपोज मैंने यहाँ पे सुमित के नाम पे रजिस्ट्रेशन किया था और सुमित के नाम पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो मैंने इसके एरर डाल दिए। ठीक है, ठीक है, और मैंने उस समय मुझे इस साइन अप पेज पर और भी इंटीग्रेशन के इश्यूज आए कि सपोज मैंने सुमित के नाम पे किया बट ये लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब इसका या तो डेटाबेस में नहीं जा रहा होगा। ठीक है,
डेटाबेस में, क्योंकि यहाँ पे क्वेरी लगी है, यहाँ पर क्वेरी लगी है डेटाबेस की कि जो भी यूजर नेम आएगा वो अगर सेम है तो लॉगिन हो जाए, नहीं तो नहीं हो। तो मेरा या तो डेटा यहाँ से सेव नहीं हो रहा होगा। तो इंटीग्रेशन करते समय, डिप्लॉय करते समय कुछ ना कुछ डेवलपर से छूटा होगा, तभी वो बग आते हैं इंटीग्रेशन के। तो कहने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन में हमें इस मॉड्यूल के भी बग मिल जाते हैं, इसे बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ये इसका एक रिग्रेशन साइकिल चल गया, ठीक है, इसका एक रिग्रेशन साइकिल चल गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो फ्रेश टेस्टिंग थी, इसके लिए रिग्रेशन साइकिल चल गया। ओके, रिग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है। फिर मुझे मिला साइन अप, सॉरी, प्रोफाइल पेज, जहां पर मेरी इमेज, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, एड्रेस, यानी सारी डिटेल जो मेरी होनी चाहिए सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर सुमित ने लॉगिन किया तो सुमित का प्रोफाइल, अमित ने किया तो अमित का, राम ने किया तो राम का। ओके, तो ऐसी अलग अलग मैंने चेक किया, यानी कि ये तीनों मॉड्यूल मेरे, जैसे मैंने साइन अप किया तो मेरी प्रोफाइल पेज खुलनी चाहिए। मैंने यहाँ से लॉग आउट बटन, मेरा एक लॉग आउट बटन यहाँ पे मुझे दिया गया, मैंने लॉग आउट किया, फिर मैंने लॉग इन किया, फिर भी मेरा सुमित, अगर मैंने सुमित से लॉग इन किया है तो सुमित का प्रोफाइल खुलना चाहिए। तो ये तीनों मॉड्यूल मेरा इसके साथ। अब इस जब मैंने प्रोफाइल चेक किया तो इसके लिए भी रिग्रेशन हो गया, इसके लिए भी डबल रिग्रेशन हो गया। तो कहने का मतलब पहले के जो प्रीवियस मॉड्यूल हैं वो दो बार मेरे रिग्रेशन हो गए। तो हम और श्योर होते चले गए, मेरे पुराने मॉड्यूल में तो कोई बग नहीं रहा, आगे पिछले मॉड्यूल में कोई बग नहीं रहा, इस मॉड्यूल में अभी मैंने टेस्टिंग किया, कोई बग आ सकता है अगर आगे का मॉड्यूल हुआ इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। ओके, तो इंटीग्रेशन का ये फायदा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू अप्रोच इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कॉम्बिनेशन वेरियस फंक्शन यूनिट and then testing them to check the result is approach taken the integration testing. Integration testing has two subdivision as an incremental and big bang approach. Incremental integration testing is divided into three approach as top down and sandwich approach, and each method has its benefit. So let's jump into the whiteboard. ओके, इंटीग्रेशन हमने जैसा कि डिस्कस किया है, तो इंटीग्रेशन ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मुझे क्या दे रही है, एक तो मुझे इंक्रीमेंटल अप्रोच दे रही है, ठीक है, और दूसरा मुझे दे रही है बिग बैंग। ओके, बिग बैंग अप्रोच। मैं थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि अब मुझे इंक्रीमेंटल मॉड्यूल में मुझे बॉटम अप, ओके, टॉप डाउन एंड सैंडविच। सैंडविच तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच की। दिस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन इज परफॉर्म on logically related modules combined in a unit. All modules are added one by one in this testing unit until tester cover the entire system. Integration testing often uses
Stubs and driver as the same module are still in their development phases. Stub and driver are the dummy program that don't implement the logic but help to establish the communication. Okay, so we have already discussed that. So login page and the sign up page. So the both modules interact with each other, communicate with each other. The sign up page is transfer the data to the for the login page. Okay, so we can say that. Okay, so this is an incremental approach. Now, okay. Now next is top down. Okay, top down. So in top down, we test that module which are higher priority. Okay, so we segregate the module is on the priority basis. So module 1 is P1. Okay, then M2, M3 and M4. Then after that M5, M6 and M7. Okay, okay. So suppose we have these are all the module to test for the integration. Okay, all the module are developed. So we segregate one by one. So we first test the M1 module test. Okay, after that we take the M1 module along with M2 module. Okay, and then M3 module and then M4 module. Okay, and after that take again M1, M2, M3, M4 and then M5 and so M1, M2, M3, M4, M5 and M6 and M1, M2, M3, M4, M5, M6 and M7. Okay, just like that. So we add the new module in each incremental phases. So we run the regression type cycle for the previous and the for the retest this new module regression this and this. So जब अब जब हम ये चेक कर रहे हैं तो ये तो चेक हो ही रहा है साथ ही साथ. ठीक है, तो टॉप डाउन में हम प्रायोरिटी बेसिस हम अब सपोज मैं पेटीएम का एग्जांपल लेता हूं तो पेटीएम में मेरा सबसे टॉप जो प्रायोरिटी का होगा वो एक बैंक से बैंक B1 एंड बैंक B2. ठीक है, सपोज अभी एक फंक्शनैलिटी बनी है कि बैंक B1 से बैंक B2 में मनी ट्रांसफर करनी है. ओके, मनी ट्रांसफर करनी है बैंक B1 से B2 में और B2 से B1 में फॉर सपोज. और दूसरी फंक्शनैलिटी बनी है कि प्रोफाइल अपडेट. ओके, प्रोफाइल अपडेट या एड पेमेंट मोड. ओके, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला. तो सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी होगी, सबसे पहली जो कोर फंक्शनैलिटी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा यही होने वाला है. प्रोफाइल एक बार को कोई यूजर अपनी अपडेट करे ना करे. ओके, कोई ऐड पेमेंट मेथड ऐड बाद में करेगा, लेकिन सबसे पहले जो उसके पास पहला मेथड है, पहला मूड है, सपोज आते हैं कि नेट बैंकिंग.
सॉरी दिस एंड नेट बैंकिंग। ओके, अब नेट बैंकिंग के थ्रू ये काम हो रहा है। अभी मेरे पास कोई और वॉलेट या कोई और अभी नहीं आया, सपोज अभी डेवलपमेंट चल रही है तो नेट बैंकिंग अभी पहले चल रही है, ठीक है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू ये हो रहा है नहीं हो रहा है, अभी पहला मेरा आया, फिर आते हैं कि ऐड मूड मेरा आ गया, ऐड पेमेंट मूड। सपोज मेरा आ गया यूपीआई, कि मैं यूपीआई के थ्रू कर सकता हूँ, है ना, या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ। तो ये तो बाद में मैं चेक करूंगा, पहले तो मैं ये कोर फंक्शनलिटी तो चेक कर लूं कि पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं नहीं हो रहे पहले से दूसरे में, जो पेटीएम का कोर फीचर है। पेटीएम का क्या काम है, पैसे ट्रांसफर करना, चाहे वो किसी भी मूड में हो, है ना। चाहे आप रेलवे का टिकट कर रहे हो, तो आप जब रेलवे का टिकट कर रहे हो तो आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेमेंट कहाँ जा रही है, रेलवे के बैंक अकाउंट में, जो भी उसका बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो एक तरह से पेमेंट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो इन टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, द टेस्टिंग इज डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज पर द आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर और कंट्रोल फ्लो। द टॉप डाउन अप्रोच इनेबल टेस्टर टू टेस्ट द फर्स्ट टॉप मॉड्यूल in isolation and then incrementally add other module one by one as we discussed here. Okay, to the testing unit going downward, the flow of testing control in this system goes from top to bottom in the approach. As a tester might find the lower module still in the development phase, they use stuff as dummy program that return the control to the superior module. Okay, now bottom up. So bottom is इसी का एक उल्टा आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बॉटम हम इसी का अपोजिट बोल सकते हैं। अब ले लेते हैं M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ओके, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं M6, M7, फिर मैं ले लेता हूं M5। ओके, अब मैंने यहां पर ले लिया M2, M6 के साथ मैंने M4 और M7 चेक कर लिया, और M2 के साथ मैंने M5 कर लिया 3 के साथ, ठीक है। मैंने फिर M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7 ये सारे चेक कर लिए, ठीक है। तो दिस अप्रोच टेस्ट द लोएस्ट मॉड्यूल फर्स्ट इन द आर्किटेक्चर structure. The other module are incrementally added one by one for testing moving upward in the architecture structure. The control of the flow in testing move from bottom to upward. This testing method is implemented when the top module are under constructed. Okay, the method use driver to simulate the functionality of missing module. The driver perform various tasks such as calling module under test, passing attached data or receiving output. Okay, अब आते हैं सैंडविच। तो सैंडविच में हम दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, टॉप डाउन, ओके, एंड बॉटम अप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। So the sandwich approach involves testing the bottom and top module in the architecture structure of the software. In this approach, the middle layer is the target where the tester has to reach. The whole software system is covered into 3 layers to begin the testing.
first is the module layer, the second is the layer above, and the third is the layer below. Okay, like that, like that, and this is a targeted module to test. Okay, oh sorry, module. Now move into the next. So what are the steps to integrate the testing? So integration testing start with understanding the architecture of the application, finding various modules of the system, understanding the functionality of each module, evaluate the data transfer between interface, look at entry and exit point in the system, prepare the plan for testing, select the testing approach, categorize the module as per the testing need, find the various test condition for test cases. Okay, so these are the step to test. हमने ऑलरेडी पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने लेवल ऑफ टेस्टिंग हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिया, और पहले वाली वीडियो जो यूनिट टेस्टिंग हमने किया था, ठीक है, कि हम पहले 1 बाय 1 मॉड्यूल टेस्ट करते हैं। ओके, देन हम इनकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ओके, होप कि आपने पहले वाला यूनिट टेस्टिंग वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप इस सीरीज पे जाके पहले यूनिट टेस्टिंग वाला वीडियो देखो, ठीक है, ताकि आपको ये वाला वीडियो सही से समझ में आए। अगर आप नए हो इस चैनल में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क पे इस चैनल को शेयर करो। इससे क्या हमें सपोर्ट मिलता है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, सॉरी आई फॉरगेट द वर्ड, सपोर्ट, और सपोर्ट मिलती है मुझे। होप कि आपको ये वीडियो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके ओके गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।